Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5, that is of the subject Control System and PLC, and unit number 1 is Basics of Control System. So previously we saw the Laplace transform, how to calculate the Laplace transform for different function, that is of time. So in this particular topic we are going to see the Laplace transform for different circuits like RC and RLC circuit. What are the course outcome? कोर्स आउटकम का मतलब है कि हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद में यूनिट में से, पूरे टॉपिक में से क्या सेटिस्फाई करने वाले हैं. देयर आर 5 कोर्स आउटकम. आउट ऑफ दैट 1 number course outcome is related to the unit number 1, that is identify different types of control system. इसके बाद में लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने के बाद what will be the our abilities. So we will be able to understand the meaning of transfer function. We can derive the transfer function for open loop and closed loop. We can write the transfer function of RC and RLC electrical circuit. Next is what do you mean by the transfer function. अब ट्रांसफ़र फंक्शन ये एक ऐसे टाइप का फंक्शन होता है जो कोई भी कंट्रोल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट में जो भी रिलेशनशिप है उसको डिराइव करता है. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि कोई भी सिस्टम का गेन किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है. सो हियर इज़ द डायग्राम. वी कैन easily observe that this is the system and this RT can be treated as the input and CT can be treated as the output in time domain. But if we convert the system into Laplace transform, we are converting this time domain into S domain. So this RT can be replaced by RS, CT can be replaced by CS, and the gain of this system can be indicated by G of S. This CT is the output, but in Laplace domain, that is S domain, we can write as Laplace of CT and it is treated as CS. Likewise, for the RT and for the gain, we can indicate RS and GS respectively. What is the definition of transfer function? Transfer function is nothing but the ratio of Laplace of output to the Laplace of input. That is Laplace of output क्या है? CS. And Laplace of input क्या है? RS. We have to consider only this as domain while calculating the transfer function. We don't concentrate on the time function. How to calculate the Laplace transform of passive elements? In the previous semester, in second semester, you already known with the passive elements R, L and C, that is resistor, inductor and capacitors. So ये तीनों भी जो elements हैं they can use as a independent elements और उन independent elements का transfer function हम S domain में अलग अलग निकाल सकते हैं. How to calculate the transfer function for this R, L, C one by one. So Laplace transform for R, resistor जो कि R वो टाइम और फ्रीक्वेंसी इनवेरिएंट है. इनवेरिएंट का मतलब उस पर किसी का असर नहीं होता. अगर टाइम पास भी होता है या फ्रीक्वेंसी में भी उसको रख देते हो तो रजिस्टर पे कोई भी असर नहीं होता. इट इज़ टाइम इनवेरिएंट क्वांटिटी. दैट्स वाई उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द ओरिजिनल RT. सो लाप्लास ऑफ रजिस्टर इज़ नथिंग बट R ऑफ S. उसी तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपेसिटर का किस टाइप से निकाला जाता है वो देखने की कोशिश करेंगे. आपको पता है कि वोल्टेज, करंट और कैपेसिटेंस का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला IT इज़ नथिंग बट द C dV बाय dt. ठीक है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू दिस कैपेसिटेंस इज़ नथिंग बट द करंट. अब करंट का इक्वेशन या वोल्टेज का इक्वेशन अगर मुझे निकालना है कैपेसिटेंस के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस
इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। अब हमने ये वाले इक्वेशन से ही इस इक्वेशन को निकाला है, c को इधर लेके गए, दैट विल बी 1/c, डेरिवेटिव का बन जाएगा इंटीग्रेशन, एंड vt is nothing but this vt, so integration of it into this 1/c is nothing but the voltage across the capacitor। तो हमेशा ध्यान रखना है कि voltage across capacitor is always equal to vt is equal to 1/c integration of 0 to infinity it dt। Then transferring this equation into the Laplace domain। अब Laplace domain में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? vt can be written as vs, 1/c can be as it is 1/c, and integration of it dt can be written as 1/s into is। So ये complete equation of voltage of the capacitor in Laplace domain can be written as vs is equal to 1/c 1/s into this is। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, द प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने दिखाया था कि आई एस ऑलवेज इक्वल्स टू जो भी इक्वेशन आया हुआ था हमारा वी एस इज इक्वल टू 1/sc इंटू आई एस, उस इक्वेशन से अगर हम वी एस बाय आई एस कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट 1/sc, और ये बन जाएगा हमारा एक रेशो, दैट रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट। देयरफॉर द ट्रांसफर for the capacitor with capacitance C can be written as Laplace of capacitor can be given as 1/sc, that is voltage divided by current का जो भी रेशो आएगा that is nothing but 1/sc for the capacitor। तो अभी आप समझ गए हैं कि Laplace of capacitor is always equals to 1/s into this c। Now how to calculate the Laplace transform for L? L का मतलब होता है इंडक्टर। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है उसका हमेशा फॉर्मूला हम टाइम डोमेन में कैसे लिखते हैं? Vt इज नथिंग बट इक्वल्स टू L di/dt। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अब मुझे डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अगर एस डोमेन में लिखना है या लाप्लास डोमेन में लिखना है तो Vt कैन बी कन्वर्टेड इनटू Vs, L एज इट इज L di/t इंटू अपॉन dt का मतलब होता है is इंटू एस। इंटीग्रेशन अगर रहा तो 1/s इंटू is होगा, लेकिन डेरिवेटिव अगर है तो s इंटू is। तो अभी हमको ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया, Vs इज नथिंग बट SLIs, एंड सॉल्विंग बाय दिस फॉर द रेशो ऑफ Vs बाय is, तो Vs अपॉन is विल गिव दिस SL। तो हमको यहाँ पे SL ये इक्वेशन मिला हुआ है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंडक्टर कैन बी रिटर्न एज SL, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कैपेसिटर्स कैन बी रिटर्न एज, जो कि हमने प्रीवियस इसमें लिखा हुआ था 1/sc। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ लाप्लास ऑफ इंडक्टर कैन बी। नाउ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आरसी नेटवर्क कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो किसी भी नेटवर्क का अगर मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए तो मुझे सबसे पहले इनपुट लूप के लिए एक ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होगा, उसका इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, और मुझे आउटपुट का भी एक वोल्टेज का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये दोनों इक्वेशन अगर मेरे पास है देन आई कैन कैलकुलेट द ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर दैट नेटवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द RC नेटवर्क, दिस इज़ R एंड दिस इज़ C, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया है वोल्टेज VIT। अब VIT को कैलकुलेट करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल नाम का एक सब्जेक्ट इसके प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, आपको KVL लूप लगाते आना ही चाहिए, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग KVL VIT कैन बी रिटर्न एज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। दीज टू वोल्टेजेस का जो सम होगा दैट इज नथिंग बट आवर इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे VIT इज इक्वल टू RIT प्लस 1/c। अभी हमने डिस्कस किया कि रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रजिस्टर इनटू दैट करंट, और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। सो बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूला अब इनको हम लाप्लास में कन्वर्ट करके देखते हैं। Vt कैन बी रिटर्न एज VIS,
आर आई टी कैन बी रिटर्न एज आर आई एस, और 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी, ये हमने कैपेसिटर के लिए पढ़ा था, और कैपेसिटर का लैप्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1/sc आई एस। अब इसमें से आई एस को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो भी हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा, अदरवाइज हम इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके रख देते हैं। नेक्स्ट इज V0t, यानी आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, और पैरेलल में हमेशा वोल्टेजेस सेम होते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज ये दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है, और कैपेसिटर इन दो टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है, दैट्स वाई आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। तो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कैन बी रिटर्न एज, कैपेसिटर का वोल्टेज फिर से हम कैसे लिखेंगे, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। इसको वापस अब अगर हम लाप्लास में कन्वर्ट करते हैं तो दिस V0t कैन बी रिटर्न एज V0s, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, सो उसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/sc आई एस। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इससे हम आई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई एस इज नथिंग बट V0s इंटू एस सी, V0s इंटू एस सी, और ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम देख सकते हैं कि VIS इज नथिंग बट RIS प्लस 1/sc IS। इसमें से अगर मैंने IS कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे IS कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा मेरा R प्लस 1/sc। IS की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वो वैल्यू हम यहाँ पे IS की पुट कर देंगे। सो VIS इज इक्वल टू दिस IS वैल्यू इज SC इंटू V0s और R प्लस SC। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें इस इक्वेशन को। सो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन जनरेट होता है दैट इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। हमेशा ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। तो हम V0s बाय VIS का जो इक्वेशन आएगा वो उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन V0s अपॉन VIS वी कैन राइट 1/sc इन ब्रैकेट R प्लस 1/sc। अब इसका अगर हम LCM निकालते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो R इंटू एस सी प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 और अपॉन दिस SC और इंटू ये ब्रैकेट वाला SC। आपको मैथमेटिकल रूल्स पता है हाउ टू कैलकुलेट द LCM एंड हाउ टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। सो SC और ये SC विल गेट कैंसल, तो V0s बाय VIS कैन बी रिटर्न एज 1/SCR प्लस 1। तो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन, यानी हमारे पास इनपुट है, हमारे पास आउटपुट है, और उन दोनों का जो रेशियो आया है दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर फंक्शन। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, VIS ब्रैकेट में सिस्टम जो है उसका पूरा ट्रांसफर फंक्शन हमें लिखना है, और यहाँ पे V0s यानी V0s अपॉन VIS इज नथिंग बट दिस ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ RLC नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमको इंडिविजुअल कंपोनेंट का ट्रांसफर फंक्शन निकालते आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्टर कैसे होता है, इंडक्टर का कैसे होता है, कैपेसिटर का। तो अभी हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव नेटवर्क। तो अभी हम डायरेक्टली इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि IT की जगह पे हम अभी इक्वेशन को किस पैटर्न में लिख सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। टेकिंग लाप्लास, तो इस VIS को हम यहाँ पे लिख रखेंगे। R इंटू आई को कैसे लिखा जाता है, R इंटू IS प्लस इंडक्टर में से जो भी करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर के वोल्टेज को लिखा जाता है S इंटू एल इंटू IS, और कैपेसिटर के वोल्टेज को लिखा जाता है 1/sc इंटू IS। यानी डायरेक्टली हमने ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में, लाप्लास के फॉर्म में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। नाउ आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आप देख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट 1/sc इंटू IS, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस कैपेसिटर। फ्रॉम दिस इक्वेशन, इनपुट इक्वेशन, हम यहाँ पे IS और IS को अगर कॉमन निकाल लेते तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा R प्लस SL प्लस 1/sc। So by solving this equation number 1 and equation number 2, we get the transfer function V0s by VIS, that is 1/SCIS upon
R plus SL plus 1 by SC into IS. तो IS will get cancelled and our result will be 1 by SC upon R plus SL plus 1 by SC. अब इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करते हैं, सो बाय यूजिंग दिस डिनोमिनेटर SC इज द LCM, और उसको सॉल्व करने के बाद R इंटू एस सी प्लस एस एल इंटू एस सी, दैट इज एस स्क्वायर एल सी प्लस 1, और ये एस सी नीचे ही रहेगा. फिर से एस सी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एस सी आर प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस 1. सो दिस विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर एल सी नेटवर्क. इस टॉपिक को हम अभी टोटली समराइज करते हैं. इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 1 से 2 बार ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू विल कंसेप्ट अबाउट द RLC नेटवर्क विल गेट क्लियर फॉर द ट्रांसफर फंक्शन. सो हम समराइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा. हमने देखा कि डिफरेंट पैसिव एलिमेंट्स के ट्रांसफर फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ RC सर्किट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ RLC सर्किट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. थैंक यू. So thank you so much for listening carefully and with patience. In the next slide we will see, or in the next lecture we will see the topic block diagram reduction technique, and why that block diagram reduction technique is important technique we will see in the next lecture. Thank you students.